So स्टार्ट करें। जी कर सकते हैं। Okay. Communication can be classified into verbal and non-verbal communication. Verbal communication involves oral and written modes. Non-verbal communication does not use words. One-way and two-way communication are types of communication. In one-way communication, no response is expected. Two-way communication works both ways. It is effective. We may use the oral mode or the written mode of verbal communication. On some occasions, we have to use both modes. Non-verbal communication cuts across language barriers. It is sometimes very quick to communicate, but it has the danger of not being understood or even being misunderstood due to variations in culture. Symbols, visuals, dress code, postures, silence, eye contact, space, distancing, body language are some of the contributors for non-verbal communication. Silence is also a kind of communication. It can be used effectively sometimes. It can be used to express dissent and also to create interest in the listener. It is very important during negotiations. Despite being proficient in the language communication fields, or at least it is not effective. The factors that act as barriers can be classified: a linguistic, semantic barriers, socio-psychological barriers, and cultural barriers. Some of the linguistic semantic barriers are ambiguity, accent, pitch, use of acronyms, careless word shift, wrong intonation, use of jargons, idioms. Some of the socio-psychological barriers are choice of wrong medium, lack of humor time constraint, inhibitions, no perceived benefit to the So ये तो हो गया था. Cross-cultural barriers include inability to understand signals in other cultural, attaching meanings as per one's own culture, not developing sensitivity to other cultures, space distancing selectivity, or I see what I want to see attitude. To be a good communicator, one should remember the 6 W's: when, why, with whom, how, what, where. कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में, वर्बल में और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. वर्बल कम्युनिकेशन अपने अंदर इन्वॉल्व करता है ओरल और रिटन मोड्स, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स का यूज नहीं करता. वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. वन वे और टू वे क्या है, एक कम्युनिकेशन के टाइप्स है. इन वन वे कम्युनिकेशन नो रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड. जो वन वे कम्युनिकेशन होता है उसमें हमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उधर रिप्लाई कुछ नहीं आएगा, रिस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा. टू वे कम्युनिकेशन वर्क्स बोथ वेज, इट इज इफेक्टिव. जो हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है वो दोनों तरफ से होता है, बोथ वे होता है, और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है.
we may use the oral mode or the written mode of verbal communication. On some occasions we have to use both the mode. हम ज्यादातर oral mode का use करते हैं और written mode का use करते हैं verbal communication का, लेकिन कुछ ऐसे occasions होते हैं जिसमें हमें दोनों modes का use करना पड़ता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कट अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स. जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करता है, मतलब वो उसमें लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होते हैं. इट इज समटाइम्स वेरी क्विक टू कम्युनिकेट, और ये कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं हम इससे. बट इट हैज द डेंजर ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड. बट इसमें एक खतरा है कि ये शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कोई भी बंदा, और इवन बीइंग मिसअंडरस्टूड ड्यू टू वेरिएशंस इन कल्चर्स. कल्चर्स के वेरिएशन की वजह से या तो अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा या कुछ मिसअंडरस्टूड कर देगा, कुछ गलत समझ लेगा. Symbols, visuals, dress code, posture, silence, eye contact, space distancing, body language are some of the contributors for non-verbal communication. ये जितने भी हमारे symbols, visuals, dress code, postures है, silence है, eye contact है, space distancing है, body language, सारे non-verbal के अंदर आते हैं. Silence is also a kind of communication. जो हमारा silence है वो भी एक तरीके का communication है. It can be used effectively sometimes, और ये हम कभी-कभी effectively भी use कर सकते हैं इसको. It can be used to express dissent and also to create interest in the listener. ये हमें dissent को express करने में भी use होता है और interest भी जगाता है listeners के अंदर. It is very important during negotiations. जब हमें कोई negotiations करनी होती है, ये तब बहुत ज़्यादा मतलब important हो जाता है हमारे लिए. Despite being proficient in the language, communication fails or at least is not effective. हम अगर लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं है तो जो कम्युनिकेशन है वो फेल भी हो सकती है और नॉन इफेक्टिव भी रह सकती है. द फैक्टर दैट एक्ट एज बैरियर्स कैन बी क्लासिफाइड. जो बैरियर्स के लिए काम मतलब फैक्टर्स है वो ऐसे क्लासिफाई किए जाते हैं. लिंग्विस्टिक सेमनेटिक बैरियर एक ही होता है. सेकंड होता है सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स. थर्ड होता है कल्चरल बैरियर्स. सम ऑफ द लिंग्विस्टिक सेमनेटिक बैरियर्स आर ambiguity, accent, pitch, use of acronyms. जो linguistic semantic barriers के कुछ अंदर जो बैरियर्स आते हैं वो आते हैं ambiguity. इसकी वजह से बैरियर्स क्रिएट होते हैं. ambiguity, accent जिस तरीके से हम बोलते हैं, pitch जो हम उठाते हैं, acronyms का जो हम यूज करते हैं, जो वर्ड शिफ्ट का हम कभी कभी केयरलेसली यूज करते हैं, रॉन्ग इंटोनेशन करते हैं, यूज ऑफ जार्गन्स और आइटम्स. सम ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर. ये कुछ सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है. चॉइस ऑफ रॉन्ग मीडियम. अगर हमने कोई रॉन्ग मीडियम चूज कर लिया है, लैक ऑफ ह्यूमर की लैक है उसमें, टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, इनहिबिशंस है, नो परसीव बेनिफिट टू द ऑडियंस. कोई भी ऑडियंस को बेनिफिट नहीं हो रहा है. एब्सेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज का एब्सेंस है, मतलब वो, और रॉन्ग यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का गलत तरीके से यूज करते हैं. क्रॉस कल्चरल बैरियर्स इंक्लूड. ये कुछ क्रॉस कल्चरल बैरियर्स है जिनके अंदर इंक्लूड होता है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिग्नल्स. ये इनएबिलिटी कि हम सिग्नल्स को समझ नहीं पाते इन अदर कल्चर्स. अटैचिंग मीनिंग्स एज पर वंस ओन कल्चर. नॉट डेवलपिंग सेंसिटिविटी टू अदर कल्चर. हम किसी भी दूसरे कल्चर के लिए सेंसिटिविटी नहीं डेवलप कर पाते हैं. स्पेस डिस्टेंसिंग हो जाता है सेलेक्टिवली. और आई सी व्हाट आई वांट टू सी एटीट्यूड. और ये एक एटीट्यूड होता है कि जो मैं देखना चाहता हूँ, आई सी वट, मैं वो देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ. ये एक एटीट्यूड होता है. ये भी हमारे लिए बैरियर्स का काम करता है. टू बी अ गुड कम्युनिकेटर वन शुड रिमेंबर द 6 WS: व्हेन, व्हाई, विद whom, हाउ, व्हाट, वेयर. किसी को अगर गुड कम्युनिकेशन करना है या गुड कम्युनिकेटर बनना है तो उसको हमेशा 6 WS का याद रखना पड़ेगा, जो होता है व्हेन, व्हाई, विद whom, हाउ, व्हाट और वेयर.